You've built like multi-million dollar business in US. What was the idea of Check? चेक का जो ओरिजिनल जो जिस चीज़ ने काम किया वो प्लान बी था, प्लान ए फेल्ड. Okay. For a Pakistani to found a company which went to $13 billion, one of the most highest companies by a Pakistani. आप लोग essentially लोगों को किताबें लोन पे देते थे. और हमने मॉडल फिगर आउट कर लिया था कि अभी 2 रेंटल के बाद ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी, चौथी के बाद हम इसको यूज बुक मार्केट में बेच देंगे. अब ये सिस्टम चला. नेक्स्ट ईयर उसने 8 मिलियन किया, फिर उसने 42 मिलियन किया, फिर उसने 148 मिलियन किया. ईयर ओवर ईयर ग्रोथ वाज जस्ट फिनोमिनल. बाद में जब देखा है तो टर्न्स आउट इट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज एवर आफ्टर Amazon. Exited, it was already worth $1 billion. तो यूनिकॉर्न बन चुकी थी जब तक. So the company itself was then on the path to doing an IPO. But how did your sort of upbringing impacted you, Isra? I am from a family of civil servants, so I have no business saying कि मेरी family is entrepreneurial. और बहुत सी जो क्वालिटीज आपने सारा जिक्र किया, एक तो ये है कि इनबिल्ट है. हम बिल्कुल बिल्ड कर सकते हैं. Entrepreneurs are not born, they can be made. ये बिल्कुल एब्सोल्युटली चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई आता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये आइडिया कर लूँ या मैं जॉब कर लूँ, मैं कहता हूँ जॉब करो. ओनली बिकॉज अंटिल वो आइडिया आपको इतना बग कर रहा है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपने उसमें घुसना नहीं है. कि entrepreneurship is a long hard journey and your passion for the problem gets you through the dark days. इस हमारा जो biggest asset है diaspora, it's also our biggest failure. Why do you say that? Because our diaspora, they're wonderful at giving charity, giving donation, love it. But countries donation से नहीं बनती. Countries बनती हैं when you have companies building good businesses. $1 billion exit हो गया, 2-3 कंपनीज कर ली. Let's say if you have to start something today and I ask you कि आपने पाकिस्तान में कुछ करना है, what would be your thinking process? पाकिस्तान I think has so many opportunities. क्या पत्थर उठाएं नीचे 4 opportunities. अच्छा, हर कोई ये कहता है, मुझे कभी ना समझ नहीं. एग्जांपल दे. Let's say if I ask you कि यार ये 5 qualities are the top most if you want to be a good entrepreneur. Fundamentally आपने Salmi, thank you so much for taking the time out. I know आप बड़े short trip पे पाकिस्तान आए हुए हैं. And just to give context to our audience, you're based in US. आपने काफ़ी exits जो हैं वो लिए in your business. You've built like multi-million dollar business in US and now you're working in Pakistan as well with a lot of different ventures. So before we go into कि क्या क्या आप कर रहे हैं, so take me back थोड़ा सा बचपन में. How did your sort of upbringing change you in context to what you are today? So where were you born? How did it all like started? First of all, thank you for having me. I'm excited to be here. You guys do an amazing job with your podcasts. So background wise, I'm a local Islamabad boy. मैं यहाँ से 89 के अंदर US गया था. But my father was a civil servant. He was a diplomat and he worked in the area. So I was born in London on one of his postings. फिर मैं पाकिस्तान वापस आया. Then we lived in Africa and then came back to Pakistan roughly in the 7th grade में. उसके बाद से I was in Pakistan until I did my FSC from Islamabad College for Boys जो कि covered market में होता था. Okay. Right. And फिर वहाँ से FSC करके I went to the US, Minnesota. Okay. So, but maybe interesting thing by going on all these different places, making new friends, meeting people with different cultures. You really fine tune आपकी thought process, right? Very early, I realized women are equal to men when it comes to skill and mindset. Because हमारा खूब competition चलता था in Africa with females in education, even at 6th grade maybe. So very early on, I'm like, all right, not to be messed with, as smart as you, work hard and see what happens. Different cultures में जाके आप उनकी you see कि हम कैसे different हैं, वो कैसे different हैं, and you open your mind to कि your way is not, my way the highway नहीं चलेगा. आपने थोड़ा सा flexible रह के देखना है. Stay true to who you are, but we live in a big gray world. It's not black and white. But how did your sort of upbringing impacted you, Isra? Like, because you've traveled a lot, exposure भी काफ़ी ज़्यादा था. Because again, a narrative could be someone, कोई young बच्चा देख रहा है, तो एक वो हमारा मतलब थोड़ा पाकिस्तान में मसला भी है ना कि हर चीज़ में कि यार अच्छा वो तो शुरू से ही जो है अब्बा जान ये थे और शुरू से इतना एक्सपोजर था, तो कोई इतना तो वो कमाल नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, इंटरनेट भी नहीं आता है, ऑल ऑफ इट. बट ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी आपने पढ़ा. लाइक नाउ व्हेन यू लुक बैक, लाइक व्हाट वर सम ऑफ द फैक्टर्स? एक तो ठीक है मल्टी कल्चरली आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की, कोई ऐसी चीज़ें जो आपके साथ
काफ़ी sort of stick हो गई हों जहन में? I will look, I am from a family of civil servants. So I have no business saying कि मेरी family is entrepreneurial, right? Other than one of my cousins जिन्होंने construction company शुरू की, everybody else always worked in the government one way or the other. So there's no such secret sauce कि जी business वाले business ही कर सकते हैं, government वाले government करेंगे, right? एक तो that's just wrong way to look at it, right? I think जो कंपनी का जो सक्सेस होना होता है, राइट, जो कि आप एज यू गो थ्रू लाइफ एंड यू फिगर आउट कि भी मैंने वो ऐसी क्या चीज़ की कि विच मेड यू डिफरेंट, मेड समवन डिफरेंट, इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू कि भी आपने शुरू में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी कर रहे थे, आप कि आपके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग में, आई एम वन ऑफ 7 किड्स, ठीक है ना, तो तीसरे चौथे के बाद पेरेंट कहना भूल जाते हैं कि भाई ये वो किधर होगा, राइट? सो यू ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन, राइट? So, in many cases, big families produce more entrepreneurs than than single ones because they become good at coloring outside the boxes. Entrepreneurship is not following the same path, right? Civil servants typically follow the same path. So I had no business, being outside. But आपको शुरू से, मेरी upbringing में I had older siblings, and by traveling all these things, बाहर expose करके, तो आपका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाता है कि ओके इट्स ये एक रास्ता, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. तो इट डजंट मैटर कि आप एक्सपोज होए कि नहीं. पेरेंट्स को इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी चाहिए कि दे अलाउ द किड्स टू कलर आउटसाइड द लाइन्स. थोड़ा सा उनको आगे पीछे फ्रीडम दें, उनको बिल्कुल ही ना करें कि ग्रेड नहीं आया तो मुसीबत आ जाएगी. समटाइम्स जिस बच्चे का C ग्रेड आता है वो बड़ा आगे चला जाता है. जब मैं पाकिस्तान वापस आया था आफ्टर अफ्रीका, तो मेरी उर्दू बड़ी कमज़ोर थी, तो मेरी 9वीं में 8 नंबर आए 100 में से, ठीक है ना. तो उस ज़माने में आपको थोड़े से 100 में से 8 नंबर, उस ज़माने में आपको थोड़े पढ़ते भी थे, राइट. बट ड्यूरिंग द प्रोसेस मेरे एक टीचर ने मुझे काफ़ी रगड़ा लगाया, बट बट आई हैड टू फिगर इट आउट एंड आई हैड टू पिक इट अप, और मुझे सीखना पड़ा तो मैंने उसको सीखा, राइट. बट द पॉइंट इज़ कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोई सर्टन एक्सपोजर है या सर्टन अपब्रिंगिंग है. इट्स एंटरप्रेन्योरशिप में द मेन कंपटीशन इज़ यू, द पर्सन इन द मिरर. बिकॉज जो बंदा वो समझ लेता है और उसको पुश करके जाता है कि भाई सुबह उठ के जो मैंने करना है, अगर मैं ही अपने आप को स्लो डाउन कर रहा हूँ, आई डाउट माई सेल्फ, तो नोबडी एल्स विल बिलीव इन मी, राइट. आई मीन मैं ये लोगों से कहता हूँ ना कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ है कि सुबह यू वेक अप विद होप कि I'm going to conquer the world. The day beats you down and you crawl back to bed. Next morning you wake up with hope, conquer the world, and it's rinse and repeat. So it's a warrior mindset. It's a warrior mindset. And I will tell you something, what I find, it's a warrior mindset, mental toughness. And I find कि पाकिस्तान में जो आप गुजरते हैं as a normal kid with all the problems you have and all the issues you have, there's a lot more mental toughness that we give ourselves credit for, right? तो आप उसका ओवर टाइम जो कल्चर होता है कि भाई अगर आपने कंपनी खोली, फेल हो गई, इट्स ओके. फेलियर का आप पे टैग नहीं लगना चाहिए, या पेरेंट्स ना शर्मा रहे हो कि यार इसको इंट्रोड्यूस ना करो, इसकी तो कंपनी बंद हो गई थी, ऐसी ना करें. बिकॉज जब आपको समझ आ गई कि फेलियर से जब आप जो कुछ सीखते हो वो आप जाके आगे अप्लाई करते हो. बिकॉज वो जो लर्निंग है ना, व्हेन यू गो थ्रू द पेन ऑफ इट, यू ओके मैंने ये नहीं किया था, मैंने ये नहीं किया था, आपने उससे सीखा, फिर आप आगे बढ़ जाएं. डोंट ड्वेल ऑन इट फॉर टू लॉन्ग. So these are the characteristics of successful entrepreneurship, right? It's not कि जी आप public school में पढ़े, grammar school में पढ़े. One of Pakistan's most successful entrepreneur in Silicon Valley, उसने ABC 6ठी ग्रेड में सीखी थी, ठीक है ना. उसका mindset था nothing's gonna stop me. तो आप कर सकते हैं, right? So that's my whole, I keep telling everyone कि इट्स नॉट कि जी जिसके A ग्रेड आ रहे हैं या जिसके 99.9 स्कोर आ रहा है कि वो मोस्ट लाइकली विल गो टू अ स्ट्रेट पाथ. जो कि थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, दैट इज़ द वन जो कि उल्टी सीधी हरकतें करके वो कंपनी भी बना लेगा. I tell everyone कि I think if you want to be a good entrepreneur, I think you have to be a little naive as well, because when you do so much maths कि अच्छा जी ये मैं करूँगा तो ये ना हो जाए, और हल्का सा कुछ इधर उधर हो गया तो बस नहीं, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए. लाइक व्हेन आई लुक लाइक माई जर्नी, आई मूव बैक टू पाकिस्तान एंड आई स्टार्ट इन लाइक 9 years.
सो उस टाइम अगर मैं अब कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने लगे तो इतना मुश्किल होता है, बिकॉज लाइक यू डू सो मच कि अच्छा यार ये चीज़ ना ख़राब हो जाए, अगली पता नहीं चलेगी, मार्केट है। उस टाइम लाइक अच्छा वट एवर, लाइक विल सी इन 6 months 8 months एंड देन यू लाइक इवॉल्व एंड लाइक यू जस्ट। बट थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएँ, 89 में आप गए, यू डिड योर बैचलर्स एंड मास्टर्स, वो किस चीज़ में आपने किया? So I went to Minnesota, did my undergraduate in engineering, electrical engineering, and Minnesota की जो it's one of the coldest places on earth, वो -30-35 तक चला जाता है। वाओ। ठीक है ना। ना आपने वहाँ पे रहना सीखना होता है, क्योंकि आप जब यहाँ से जाते हैं तो आपकी तो जैकेट भी सही नहीं होती। तो आई लिव देयर फॉर 10 years, और मैंने वहाँ पे बट आई लर्न सो मच फ्रॉम द फर्स्ट डे, क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं, आपके पास स्किल सेट थोड़ी कम होती है, आपको अंडा भी बनाना नहीं आता, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट। उधर आपने सब कुछ खुद ही करना है। वहाँ पे बिकॉज आई वाज सन ऑफ अ सिविल सर्वेंट, तो आई डिडंट हैव अ बिग अकाउंट कि मेरे पास इतने ही थे कि वो स्टोरी होती है जी, 2 रुपये लेकर आए थे, काइंड ऑफ वही स्टोरी है जो कि आप सुनते हैं ना बहुत सारे लोगों से। तो आई हैड टू गेट अ जॉब राइट अवे, और मेरी जॉब सबसे पहले वॉज टू बी अ जमादार। आई वॉज क्लीनिंग बाथरूम्स इन द स्टूडेंट यूनियन, बिकॉज मेरी कोई स्किल सेट थी नहीं कि मैं कुछ भी कर सकूँ, राइट। बट यार वो जो मेरी शॉक लर्निंग हुई थी कि आई फिगर्ड आउट कि अगर इट वॉज अ वेरी टफ जॉब, आई हैड अ रियली हार्ड टाइम डूइंग इट। को दिखता आपको होता है यार मैं यहाँ बाथरूम धोने आया था, व्हाट एम आई डूइंग। एंड दिस इज योर कॉलेज के अंदर, या इन एज अ स्टूडेंट, राइट। एंड बट उससे जो आपको आता है वो कि आई थिंक इफ आई कैन डू दिस, आई कैन डू एनीथिंग, आपको माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है, राइट। तो सो आई डिड माई अंडर ग्रेजुएट। मैंने इवन दो मैंने इंजीनियरिंग का किया, बस मैंने इंजीनियरिंग में सिर्फ 3 महीने काम किया, बिकॉज आई डिड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई थॉट कि यार ये बोरिंग है। बट एज अ फॉरेन स्टूडेंट आप चौथे साल में जाके अपना करियर चेंज नहीं कर सकते, कि आपने पैसे बहुत पे किए हुए होते हैं, आपने निकलना है उससे आगे, राइट। बट उसके फ़ौरन बाद आई गॉट इनटू प्रोडक्ट्स, और मैंने समाव करके एक जॉब पकड़ ली एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। आई कन्विंस दिस गाय कि आप मुझे कोशिश करें ना, आई डू इट, एंड ही सॉ समथिंग, उसने कहा ठीक है देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ से फिर मेरी स्टार्टअप की जर्नी शुरू हुई, शुरू में ही इन अ प्लेस लाइक मिनेसोटा व्हिच वाज हैड वेरी फ्यू स्टार्टअप्स। तो वहाँ से देन आई स्टार्टेड कि आई लाइक द स्मॉल कंपनीज, आई प्रेफर टू बिल्ड थिंग्स, राइट। वो कल्चर मुझे अच्छा लगता है कि वेयर यू कैन डिफाइनिंग कि क्या चीज़ होनी है और आपने कैसे करनी है। तो वहाँ से मेरी उसकी प्रोफेशनल जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। बट अंडर ग्रेजुएट आई जॉइन MBA प्रोग्राम मिनेसोटा में। वहाँ पे ना द कंपनीज आर जनरल मिल्स, टारगेट, 3M, वेरी फेमस कंपनीज। बट जब मैं MBA की क्लास में गया तो सारे जी हम सीरियल कैसे लॉन्च करेंगे, हम ये पोस्ट नोट कैसे लॉन्च करना है, इसको क्या करेंगे, या फिर मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है खाने की। मैंने कहा था कि मैं किधर फंस गया हूँ, एक भी टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं था MBA के अंदर। बट उससे ये हुआ ना कि आई नेवर फिनिश्ड इट। बट मैंने कहा जी हम ये MBA कर रहा हूँ, तो मेरे माथे से स्टिकर इंजीनियर का हट के MBA का वाला आ गया। बट एट दैट टाइम लाइक आपके जहन में था कि लाइक यू ऑल्सो वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिकॉज स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ज़्यादा वो कूल नहीं था उस ज़माने में? ना बिल्कुल भी। वो तो यार इन 94 इंटरनेट शुरू हो रहा था, राइट। आई मीन आई स्टिल रिमेंबर याहू का पुराना इंटरफेस, अपनी पहली वेबसाइट बनाना, वो टूल्स इस्तेमाल करना, वाज बेयरली स्टार्टिंग, राइट। ईमेल भी काफ़ी आगे निकल रही थी, बट कुछ भी नहीं था। आई डिड हैव द नोशन, मैंने एक बड़ी शुरू में एक छोटी सी कंपनी बनाई थी फॉर ईमेल मैनेजमेंट, बिकॉज मैं देखा था कि यार ईमेल्स आ रही हैं, मे बी कोई टूल बनाते हैं, कुछ करते हैं, एंड दैट गॉट एक्वायर्ड बाय अ लोकल कंपनी वहाँ पे। बट इट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग, बट इट शोड मी कि ये कितने उससे मैंने अपने साथ लोन उतार दिया। कितने की निकली तकरीबन वो? यार वो it was like a few $100,000. Okay. But in 1995, that was a big deal for a student who had been broke perpetually. So then I joined startup वहाँ पे, जो कि फॉर्मल स्टार्टअप थी। उसको भी मैंने वहाँ पे जाके मैंने प्रोडक्ट का रोल दिया उनके साथ। पर उन्होंने भी देखा था इसने कुछ कोशिश की थी, कुछ करके आया है, तो अब इसको देते हैं। एंड फ्रैंकली आई हैड टू गो वर्क समवेयर बिकॉज़ आई नीडेड a H-1B वीज़ा। आपकी ये भी रियलिटी होती है ना कि यू हैव टू वर्क समवेयर। हमारे मसाइल भी तो ज़रा हमारे मसाइल है ना कि तो आपने हमेशा आप बैठ के करे हो तो यार आज ये करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे करूँगा, हाफ द टाइम होता नहीं है। बट आपको इतनी प्लानिंग करनी पड़ती है इन छोटी चीज़ों के ऊपर कि आपने यू हैव टू वरी अबाउट कि ज़्यादा टिकट मिल गए तो डिपोर्ट तो नहीं हो जाएंगे आप। ये भी आप सोच रहे होते हैं। इट्स नॉट एट दैट पॉइंट यू आर अ विजिटर, so you have to do certain things. तो फिर वहाँ से फिर मैंने did my startup journey पे हमारी वहाँ से शुरू हुई।
सो और वहाँ कितना अर्सा तकरीबन आपने काम किया उस कंपनी में, एंड देन यू लेफ्ट द कंपनी? या सो आई वॉज देयर फॉर 7 years. उसकी स्टोरी यही है कि उन्होंने वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को यूएस लेकर आते थे, उनको लॉन्च करके उनको रन करते थे. तो उनकी कोई नई प्रोडक्ट आ रही थी, उनके पास कोई बंदा नहीं था उस पर काम करने के लिए. सो दे वर लाइक अच्छा ये टेक दिस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि दैट प्रोडक्ट बिकेम द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी. एवरीथिंग हैज गॉट शट डाउन बिकॉज इट डिड सो वेल. और फिर इट वॉज द प्रोडक्ट दैट गॉट एक्वायर्ड बाय साउथ अफ्रीकन कंपनी. उन्होंने आके उसको कंपनी को एक्वायर कर लिया. एंड देन मैंने 94 में शुरू किया था. इन द ईयर 2000 आई वाज लाइक यार वेस्ट कोस्ट पे कुछ हो रहा है, मैं कहते मिनेसोटा में बैठा हुआ हूँ, आई शुड गो. तो मैंने अपना सब कुछ अपनी गाड़ी में पैक किया एंड ड्रोव टू कैलिफोर्निया. So Like actually you packed everything and you were like, drove to California. and but was there a plan कि मैं जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा वहाँ So जाके? one of my really good friends जो कि इस्लामाबाद से यहाँ गया हुआ था, he just started his master's program at Stanford. तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, काउच खाली रखना. तो फिर मैं उसके went to his apartment, stayed with him for a little while until I figured out क्या करना है. But वहाँ पे गोल वही था कि आप एक जाके स्टार्टअप शुरू करनी थी. Okay. So that's what I और did. वहाँ से आपका जो है वो शेक का शुरू हुआ? No. वहाँ पे जाके मेरा पहला फेलियर हुआ. Okay. हाँ. And this is 19? This is 2000. Okay. And I had raised some money. मैं मिनेसोटा से लोगों से बात करके गया था, भाई आई वांट टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर टूल जिसको आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करना पड़े कंपनी पे. द वेरी अर्ली डेट ऑफ अ SaaS प्रोडक्ट के जो कि कम्प्लीटली एक क्लाउड में चलती है. ठीक है. तो वो मैंने उसको बनाना शुरू किया. यू नो एज यू गो इन द जर्नी आप चीज़ें सीखते जा रहे हैं, राइट? आपको पता चल रहा है क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है. उसमें माई बिगेस्ट लर्निंग वॉज कि को फाउंडर केयरफुली चूज़ करें. मैंने वहाँ पे भी हैड अ को फाउंडर, यू नो आई एम वेरी एग्रेसिव तो फिगर आउट करके हमने प्रोडक्ट तो बना ली. पहले 5 कस्टमर भी आ गए. बट माई को फाउंडर वॉज समवन जो कि यू नो उसको एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ हिज करियर वो मल्टीपल कंपनीज पे काम करना चाहता था. तो मेरे कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स आते थे तो वो मिल नहीं रहा, कस्टमर शो में चाह रहे हैं. तो वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया यार मैं चल नहीं सकता इसके साथ, एंड ही आर ऑल्सो नॉट गिविंग अप ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट. तो मैंने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस किए एंड सेट कि मैं बंद कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ फंडामेंटली नॉट गोइंग टू वर्क आउट. और वो पैसे क्योंकि आपने यूज़ नहीं किए तो वापस किए? जो बचा था मैंने वापस कर दिया एंड दे अप्रिशिएटेड इट. वरना लोग उसको पे घसीटते रहते. एट द सेम टाइम वो उसका बबल हेड बर्स्ट सिलिकॉन वैली का, राइट? एंड थिंग्स वर प्रीटी क्रेजी. और कितने रेज किए थे एट दैट टाइम आपने? दैट वाज $500,000 मैंने रेज किया था. या सीड मनी आप रेज करते हैं. बट उस वक्त भी मैंने पाकिस्तान में आके अपनी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कराई थी. शुरू से मैं कोशिश करता था पाकिस्तान में आप कुछ करते रहे. तो मेरी सॉफ्टवेयर टीम इस्लामाबाद में थी उस वक्त भी. उसके बाद एज द यू नो वहाँ पे सिलिकॉन वैली एवरीथिंग वाज ओवरटर्न अपसाइड डाउन. एंड मैं भी थोड़ा सा मैंने कहा यार ओके मे बी आई गो वर्क एट अ कंपनी बिकॉज आई हैव अ फ्यू स्किल सेट्स आई नीड टू इम्प्रूव. सो आई वेंट एंड जॉइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि एंटरप्राइज CRM करती थी. इज़ अ रियली गुड कंपनी. वहाँ पे मैंने यू नो जो ट्रू अमेरिकन सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, प्रोडक्ट प्रोफेशनल्स हैं जो कि रियली हाई एंड सेल्स करते हैं, टेंस ऑफ मिलियंस की डील्स करते हैं, फिर वो मैंने वहाँ पे जाके सीखा कैसे करते हैं. मैं वहाँ पे आई जॉइन द प्रोडक्ट ग्रुप. मैं वहाँ पे कोई 3-3.5 साल था. तो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दे हैड मेड मी हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट. ठीक है. माई होल थिंग वॉज आई कैन हेट डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. तो वो इट बिकेम अ रिंस एंड रिपीट काइंड ऑफ अ थिंग. फिर मुझे दोबारा शुरू गया था यार मे बी इट्स टाइम टू डू समथिंग. बट वन थिंग आई रियलाइज्ड कि आई नीडेड टू लर्न हाउ टू रियली सेल वैल्यू. कि मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूँ दैट यू कैन गिव मी $10 million एंड आई विल डू माई बेस्ट टू रियली टेक इट फॉरवर्ड इन द बेस्ट वे. तो आई डिड समथिंग विच वॉज काइंड ऑफ क्रेजी कि मैंने कि अपनी हेड की जॉब छोड़ी और मैंने जाके सेल्स का बैग उठा लिया एज एंट्री लेवल इन द सेम कंपनी. लोग कहते हैं इधर से उधर सेम कंपनी में किसी और कंपनी में चले जाते हैं. बट मैंने वहाँ पे रिलेशनशिप बना ली थी विद द हेड ऑफ सेल्स एंड ही वॉज रियली गुड. इज़ अ वेरी हार्ड मैन बट रियली गुड एट सेल्स. मैंने उसको कहा लेट मी डू इट ऑन द वेस्ट कोस्ट. इट वॉज अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. तो उनके सारे कस्टमर ईस्ट कोस्ट पे. तो क्या उसने कहा था वेस्ट कोस्ट पे क्या करोगे? तो इतने नहीं है. मैंने कहा थोड़े बहुत हैं. गिव मी 6 months, see if I can do something.
right? So I worked very hard. He helped me, and we were able to close the company's largest banking customer on the West Coast. First mortgage company, first telco, as companies को मैंने वहाँ पे किया. So and I began to learn कि okay, this is what you really have to do to convince someone. और वहाँ पे एक और चीज़ भी है आपका होता है ना कि one of the most important skill set is attention to detail in entrepreneurship. Other one is getting your own hands dirty. एक तो हमारा होता है कि मैं बॉस हूँ, चलो आप उसको कह दें, उसको कह दें, फिर मुझे बताना क्या हुआ. You have to bypass the whole thing and you have to go do this yourself. Because there's a concept in entrepreneurship, it's called from 0 to 1. कि आपने जो स्क्रैच कर रहा है, पहले बिग कस्टमर जहाँ पे आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट कर लिया है वो 1 है. तो वो अगर एंटरप्रेन्योर खुद नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट कभी नहीं बन सकती. ठीक है. सो होल पॉइंट वाज कि आई बिकेम, तो मैंने उधर जो सेल्स साइकिल थी पूरी डिटेल में, फ्रॉम इंजीनियरिंग से ले लें उसकी, आई वाज इंजीनियर, सो दैट वाज माय वन ऑफ माय बेनिफिट्स, दैट आई कुड एक्चुअली टॉक द टेक्नोलॉजी अंडरनीथ इट. तो मैंने उसको मैंने एडवांटेज लिया. एंड तो वहाँ पे वंस आई अंडरस्टूड, वंस आई फेल्ट कंफर्टेबल कि मैं ये कर सकता हूँ, देन आई टोल्ड माई बॉस कि ना अब 1.5-2 साल हो गए थे इस चीज़ को कि आई फील आई वांट टू गो ओपन माई ओन कंपनी. एंड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो कि वेस्ट कोस्ट पे होता था, ही वॉज माई मेंटर इन अ सेंस. तो ही यूज्ड टू कम विद मी फॉर ऑल द डील्स. देन ही वाज लाइक, ओके व्हाटएवर यू गोना डू, आई एम गोना इन्वेस्ट इन यू, एंड हियर माई 10 फ्रेंड्स, उनको फ़ोन करो, दे विल ऑल गिव यू 50,000 ईच एंड यू रेज $500,000 ओवरनाइट फॉर सीड फंडिंग. Wow. And आपकी एज क्या थी उस टाइम तकरीबन? That was, I was 35. 35. और वहाँ से फिर यू स्टार्टेड योर फर्स्ट, फेल तो की भी थी ना पहले, छोटी की भी फेल की भी थी. द सिग्निफिकेंट वन मैंने 35 पे शुरू की. And that's Chegg. Just Chegg. Okay. और वहाँ like what was the idea of Chegg? Because again when I was researching it, जो idea probably I think AdTech तो अब ज़रा cool हुआ है after the digitalization and AIs and whatnot. But at that time वो कहाँ से idea आया? What was the first thought? या वो काफ़ी पहले से आपने पार्क किया हुआ था कि यार eventually मुझे ये करना है? Look, so Chegg का जो ओरिजिनल जो जिस चीज़ ने काम किया वो प्लान B था, प्लान A failed. Okay. By the way, there's so many companies in Silicon Valley जो कि disaster से वापस रिकवर करती हैं. So it's very easy to go down the path with like, oops, ये तो नहीं चल रहा, अब मैं क्या करूँ, right? तो हमारा उस वक्त was not about education at all, but it was about servicing students. उस वक्त US में एक प्रोडक्ट होती थी वेबसाइट Craigslist के नाम से, कि anybody in the city could apply पे मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए यूज्ड, खटाक से उसको मिल जाएगी, या मुझे ये चाहिए वो मिल जाएगा, राइट? But in the college market, it was strange for a weird guy to show up at your dorm, कोई चीज़ लेके. So students were like, I'm not comfortable with this. So we made a Craigslist for colleges. Chegg is for chicken or egg kind of student brand. तो हमने उसको हमने खोला, right? But उसका idea आपको कहाँ से आया? Like कि अच्छा this is what I want to do. Like very initial thought कहाँ से आई? यार उसकी initial thought, I had met a few entrepreneurs. And I had heard कि भाई स्कूलों में कॉलेजेस में लोग ये करना चाह रहे हैं. तो I aligned with a couple of students कि यार ओके लेट्स डू दिस. एक स्टूडेंट ने उसका कोर कॉन्सेप्ट भी बना के रखा हुआ था आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी पे. एंड तुमने कहा ओके यार लुक दिस थिंग कुड वर्क, बट इसमें ये इश्यूज हैं, लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स गो बिल्ड दिस थिंग, लेट्स गो सी हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. लेकिन द बिगेस्ट थिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज देयर इज अ फंडामेंटल रूल कि अगर आपको आइडिया आता है, अस्यूम 5 लोगों के पास सेम आइडिया आ गया है, इट्स द गेम ऑफ एग्जीक्यूशन. दैट्स व्हाट इट इज़, राइट? एंड सो उसको फिर हम आगे लेके चले, एंड इट वाज डूइंग रियली वेल, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर यूजिंग इट, बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही थी. बट उसके अंदर फंडामेंटल बिजनेस प्रॉब्लम ये था कि सेमेस्टर के शुरू में लोग आते थे ख़रीदने के लिए, फिर सेमेस्टर के एंड में आते थे और बीच में खामोशी. और अगर आपके 2.5 महीने बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा तो आपका बिजनेस है नहीं, या तो आपका लंप इतना बड़ा हो कि आप उसको कर सकते हैं कि जी बाकी हम लोग ये हो रहा है. वी रियलाइज़ के फंडिंग तो हमारे पास है, हमने $1.5 मिलियन रेज करके रखे हुए थे. बट व्हाट वी रियलाइज़ कि अब हमारे पास 1.1 मिलियन पे कि यार ये पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे और ये स्टिकी नहीं है. और आप लोग एसेंशियली लोगों को किताबें लोन पे देते थे? नहीं, वो एट दैट पॉइंट इट वाज अ मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम ईच अदर. स्टूडेंट्स आपस में ले रहे थे, हमारे बीच में कुछ नहीं. सो लाइक अ मिनी अमेज़न, मिनी क्रेग्सलिस्ट, ठीक है, राइट? कि आप आपस में ले रहे हैं. तो जब वहाँ पे हमने एक
पॉइंट पे पहुँचे कि यार ये नहीं चल रहा, वी हैड टू से ओके अब क्या करें. एंड वन ऑफ द थिंग्स वी डिड वाज वी लुक्ड विद इन द सिस्टम एंड वी न्यू दैट टेक्स्ट बुक्स आर बीइंग bought and sold at a very high rate, at a significant rate. हमने कहा यार अपने कॉलेज के दिन से याद आया कि यार हम लोग टेक्स्ट बुक लेने जाते थे, $200 की होती थी, हम ख़रीदते थे. जब यूज़ बुक में देते तो बुक स्टोर हमसे $50 में लेके उसको 160 का बेचता था. एंड बड़ा गुस्सा आता था. तो उस ज़माने में नेटफ्लिक्स शुरू हुआ था, वो भी निकलना शुरू हुआ था. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट some old age issues here. And this is like early 2000s चल रहे थे. 2005 2006 राइट, कि वो DVD उस वक्त शिप करते थे. तो वी वर लाइक यार व्हाई डोंट वी डू अ नेटफ्लिक्स फॉर टेक्स्ट बुक्स. हमें पता है टेक्स्ट बुक्स 5 सेमेस्टर चलेगी, और अगर हम उसको 2 दफ़ा रेंटल करने के बाद हम रेंट करें कि आप इस्तेमाल करें या वापस भेज दें, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर बुक्स यू डोंट नीड फॉर लाइफ. आपने हार्ड कोर आपको बुक्स चाहिए होती हैं, स्पेशलाइजेशन की बुक चाहिए होती है आपकी, वरना आप यू डोंट वांट द बुक. कि आप उसको रेंट करके वापस भेज दें. और हमने मॉडल फिगर आउट कर लिया था कि अभी 2 रेंटल के बाद ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी, चौथी के बाद हम इसको यूज बुक मार्केट में भेज देंगे. अब ये सिस्टम चलाएंगे. वो उसकी भी बहुत स्टोरीज हैं अबाउट कि कैसे उसको चलाया, क्या उसमें पेन पॉइंट्स आए, क्या चीज़ नहीं काम कर रही थी. पर एट द एंड ऑफ द डे जब हमने वो मॉडल शुरू किया तो पहले सेमेस्टर में उसने $500,000 किया, नेक्स्ट ईयर उसने $8 million किया, नेक्स्ट फिजिकल में फिर उसने $42 million किया, फिर उसने $148 million किया. ईयर ओवर ईयर ग्रोथ वॉज जस्ट फिनोमिनल. बाद में जब देखा है तो टर्न्स आउट इट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज एवर आफ्टर अमेजॉन एंड ज़ैपर्स इन द विंडो जिसमें हमने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए थे. That's how significant, that's how much the demand was for it. And we had a raw nerve. Everybody used to be really, really upset at buying books because it was so. In some cases, आपका कम्युनिटी स्कूल्स के अंदर आपके ट्यूशन इतनी कम नहीं होती थी जितनी टेक्स्ट बुक ज़्यादा होती थी. तो it hit a big nerve with a lot of students, and that became the core business. और उसमें आपके कितने को-फाउंडर्स या कितने लोग थे initially? उसमें एक co-founder था मेरा. And he was Pakistani? He is Indian actually. Okay. Yeah. So and उसमें एक और भी हमारा अमेरिकन भी था, but he had left early because he was in Iowa. उसने कैलिफोर्निया मूव नहीं होना था. At that point, if you're not in one place, आप वर्क फ्रॉम होम चलता नहीं था because you didn't have the ability to do any of those stuff, right? So he went his own way, and then we built the company forward. I was the founding CEO of the company, and when you guys were like, जब आप लोग इसको सोच रहे थे, and when you guys were doing the maths, 1.5 million आपने ले लिया, जमा हो गए पैसे, अच्छा अब हम करेंगे. उस टाइम was there an expectation कि इसको हम इस लेवल तक लेके जा सकते हैं? Because a lot of times like एक होता है ना कि ठीक है यार बस स्लो ग्रोथ होती रहेगी, बट जिस तरह के नंबर्स आना शुरू हुए, was that also like very like wow for you guys as well? Yeah, you guys were expecting it? यार देखें, it's really really important कि आप, I'll give a caveat कि spreadsheets are not always true, बट आपने एक स्प्रेडशीट बना के फिगर आउट करना होता है कि भाई अगर मैं इसको बनाऊंगा तो इसका पोटेंशियल क्या है. आपको कोई इन्वेस्टर कहेगा, पूछेगा 3 साल बाद क्या करोगे, अगर आपको मुझे पता नहीं तो आपको तो उसने वैसे ही इन्वेस्ट नहीं करना है. सो बट व्हाट यू एंड अप डूइंग इज़ कि आप उसके असम्पशंस बनाते हो. अ गुड वे टू स्टार्ट अ कंपनी इज़ टू लिस्ट डाउन कि व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट आर क्रिटिकल टू माई बिजनेस, जिसके मुझे जवाब चाहिए. मेरे पास किसके जवाब हैं, जिनके नहीं हैं उनकी मैं असम्पशन कहाँ से लेकर आ सकता हूँ, और अब मैंने उनको टेस्ट आउट करना है. ठीक है. सो हमने वी हैड few $100,000 लेफ्ट. हमने कहा इसमें हमें ये टेस्ट करना है टू प्रूव टू द इन्वेस्टर्स कि दिस थिंग कुड वर्क. ठीक है ना. हमने उनसे कहा जी ये हमने मॉडल बनाया, हमने पहले बोर्ड मीटिंग में दिखाया कि भाई ये मॉडल हम ये करने जा रहे हैं, और आई थिंक अगर ये चीज़ें हो गई, आई थिंक वी शुड डू इट. वन ऑफ माई बोर्ड मेम्बर्स वाज वन ऑफ आवर इन्वेस्टर्स, कहते ठीक है अगर ये चीज़ हो गया then I will invest. ठीक है ना. Then we went and we were shocked कि how well it actually worked out. And so he gave us $2 million more. ठीक है ना. तो we were like all right, थोड़ी जाना है ये. अब हमने कहा okay, next number हमारे ये था. But in the process we began to figure out कि friction क्या है, कहाँ पे चीज़ ब्रेक हो रही है. वो बस crazy was कि हमने पहली दफ़ा जब किताबें रेंट की भेजी तो हमारा अपना वेयर हाउस भी नहीं था. हमें पता भी नहीं था किताबें वापस किधर आनी है. बिकॉज वी लाइक यार कि एट दैट पॉइंट अगर कंपनी ने बंद होना था वो फिर किताबों ने वापस वैसे ही नहीं आना था. राइट. तो वी फिगर आउट कि अगर हमने ये सक्सेसफुली कर लिया, वी विल फिगर आउट किताबें वापस कैसे आनी है. बिकॉज दैट्स अ सेल्फ बिलीफ जो कि आपका माइंडसेट जो आपका बनता है
कि आई विल फिगर दिस आउट, ये कोई मसला नहीं है, हाउ हार्ड कैन इट बी, मैं किसी को चांद पे थोड़ी भेज रहा हूँ, किताबें आगे पीछे कर रहा हूँ यार, ऐसा क्या हो गया, राइट? बट ऑल्सो लाइक फ्रॉम अ वेरी ऑन अ वेरी मैक्रो लेवल, आज के दौर में तो देखें क्लॉड है, डाटा है, रिसर्च आपको करते हैं, नंबर्स आ जाते हैं गूगल के ऊपर। अगर आज मैंने सिमिलर आइडिया पे काम करना है तो मेरे पास कोई ना कोई स्टार्ट्स होंगे, बट उस टाइम आप, आई एम श्योर अब आप प्रॉब्ली कोई 50 यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों से रिसर्च तो नहीं करते होंगे, अच्छा अगर हम ये करें व्हाट डू यू थिंक, ये वो सारा। सो व्हेन यू गाइस वर मेकिंग अजम्पशंस एंड थिंकिंग अबाउट कि अच्छा लोग लेंगे देंगे इतने पैसे वी कैन मेक इन द एंड, हाउ लाइक एट दैट टाइम आप लोग कैसे उसको कर रहे थे? आप 2 मॉडल बनाते हैं, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, रियलिटी इज़ बिटवीन द टू। कंजर्वेटिव होता है कि जी अगर ये किया तो बेसिक तो है बट इसकी ये ग्रोथ होगी, और अगर वाकई में चल पड़ा तो ये ग्रोथ होगी, ठीक है ना। व्हेन वी स्टार्टेड, हमने कंजर्वेटिव को बोर्ड को दिखाया, वी टोल्ड देम कि पोटेंशियल ये है, अगर ये नंबर्स आ गए, ये हमने कर लिया। हमने फिर प्लानिंग की थी कंजर्वेटिव से, बिकॉज वी डिडंट हैव कैश। व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज द एग्रेसिव वन वाज द रियलिटी, कि हम लोग वी वर टर्निंग अवे 90+% ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेबसाइट, बिकॉज हम उनको सर्विस ही नहीं कर सकते थे, इतनी डिमांड थी, हमारे पास किताबें नहीं थी। अब एक और चीज़ हमने की कि हमने कहा यार हमारे पास पैसे तो नहीं है वेयर हाउस में किताबें रखने के लिए, तो हमें जस्ट इन टाइम शिपिंग करनी चाहिए कि जी ऑर्डर ले लो अमेज़ॉन से ख़रीद के शिप करा दो, और उसको भी बाद में ईमेल भेज देंगे भाई यहाँ शिप कर देना, ठीक है ना। तो हमने भी इस तरह से अपना कॉस्ट भी हमने हाफ कर लिया। तो इनोवेशन है, इनोवेटिव चीज़ें जो करनी पड़ती हैं, यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी सो यू नो अमेजिंग इन योर आइडिया एंड टेक्नोलॉजी। समटाइम्स इट्स अबाउट, अमेरिका में उसको मीट एंड पोटैटोज बिजनेस कहते हैं, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि भाई आप यू डूइंग द हार्ड अगली स्टफ विच एक्चुअली मेक्स यू प्रॉफिटेबल, मेक्स यू मच बेटर, राइट। तो वी फिगर्ड आउट कि भाई शिपिंग कैसे करनी है, हमने वेयर हाउस में कैसे किताबें रखनी है, ऑल दोज थिंग्स। नाउ यू ट्राइंग टू, हमें पता है कि जी हमने $100 की किताब ली है, ठीक है, $100 की किताब है, हम उसको मार्केट में 100 की मिलती है, हमने यूज़ मार्केट से उसको 66 का उठाया और हमने उसको 35 का रेंट करना है। तो एक तो हमने $25 यहाँ लूज़ करने हैं, फिर हमने उसको $4 देकर फ्री शिपिंग भी देनी है, बिकॉज अमेज़ॉन वाज डूइंग फ्री शिपिंग, तो आपने भी देनी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने $45 आपको लॉस हो गया। सेकेंड टाइम वो रेंट होगी, उसके बाद 2.2 टाइम एवरेज पे उसके बाद वो रेंट होना शुरू हो जाएगी। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि फिर ये जो आपके सारे नॉब्स हैं मॉडल के अंदर, अब आप ये देख रहे हैं कि भाई मैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करूँ। आपने फिगर आउट कर लिया कि अगर मैंने एक स्टूडेंट को एक के बजाय 2 किताबें कर दी तो मेरा शिपिंग कॉस्ट आधा हो गया, राइट। अब आपने फिगर आउट कर लिया व्हाट आर द थिंग्स जो कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगे, मेरे बिजनेस को अच्छा दिखाएंगे, मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैसे होगा, बिकॉज नाउ यू आर रियली वरिंग अबाउट कि भाई मेरा रेवेन्यू ये आ रहा है बट मैंने प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे जाना है जाके मैं सस्टेन कर सकूँ या फिर मैं दिखा सकूँ, तब मॉडल वर्क्स, ठीक है ना। तो वी मेड दिस थिंग वी कॉल द वन बुक मॉडल, कि इफ़ यू एवरेज एवरीथिंग डाउन, कि एक किताब 35 की रेंट होगी, उसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 3 होगा, उसकी शिपिंग 1.5 होगी, ये होगा वो होगा। अब इसको हमने स्केल करना है, सो यू डू इंक्रीमेंटली एंड थ्रू आउट एवरी वीक आप उन नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं, यू कीपिंग द बोर्ड अपडेटेड। मेरी फिलॉसफी है कि आई कीप दैम मोर इंक्लूसिव, कि उनको बोर्ड मीटिंग में जाकर शॉक दें, गुड और बैड, राइट। बट द पॉइंट वॉज कि अगर हमने कहा था जी हमने 30,000 बुक्स करनी है, वी डूइंग 70,000, वी हिट समथिंग विच रियली वॉज अ नीड। एक होता है ना कि आपकी कंपनी इज इट अ पेन किलर या इज इट अ वाइटामिन, दिस वाज अ पेन किलर, राइट। और अभी लाइक कंपनी का क्या, लाइक व्हाट यू गाइस डूइंग आल्सो, लाइक हाउ डिड इट इवॉल्व ओवर टाइम, बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गई चीज़ें, अमेज़ॉन का राइज, अब तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही लोग जैसे किंडल्स एंड वो साइड हुई, तो पूरी एवोल्यूशन के ऊपर कैसे आपने काम किया? सो आई लेफ्ट द कंपनी अराउंड 2010 ठीक है। और आजकल अनफॉर्चुनेटली चेक हैज़ बिकम द पोस्टर चाइल्ड फॉर AI डिसरप्शन। इट हैज़ रियली हर्ट द कंपनी because uska the technology was not keeping up. They during COVID, it you know, for a Pakistani to do a found a company which went to $13 billion, one of the most highest companies by a Pakistani, but now uski value has crashed because it did not stay with the technology and got surprised by AI. Lots of company got surprised, but you know, इनका एक मिसटेप हो गया था, इनकी one of the earnings call because it went public,
वन ऑफ द अर्निंग्स कॉल पे उन्होंने कह दिया हम AI को फिगर आउट कर रहे हैं, उन्होंने कहा ओ इनको पता ही नहीं है, मार्केट इट रियली क्रैश्ड. सो जब 2011 में आपने छोड़ा तो आपने अपने शेयर्स मतलब ये वेंट आउट बिल्कुल ही. आई एग्जिटेड, इट वाज ऑलरेडी वर्थ $1 billion, तो यूनिकॉर्न बन चुकी थी जब तक. सो द कंपनी इटसेल्फ वाज देन on the path to doing an IPO. And it's really important to know who you are. I find myself to be more excited about building things than having 10-11 VPs reporting to me and हर दिन आपने बस management level पे लगे हुए हैं. I don't find that exciting. उस job के लिए बहुत ज़बरदस्त लोग बैठे हुए हैं and they should do it. One of the things, the way I look at it, कि आपने as founder आपने अपने आप को evaluate करना है कि भाई am I the right person for this job? If I would hire someone today, would I be the one doing it or should somebody else do it? At that point, my whole analysis was there's someone who's really good at running a public company. Because public companies के अपने चैलेंज होते हैं. आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, आपके पास एकदम लॉसूट आ जाता है. And I was like, I want my freedom, right? So from that perspective, आप उसको you find the right person to lead it. And I have a different philosophy कि your company is not your kid, it's not your baby. A lot of people कहते हैं, oh, this is my baby, मैं क्या करूँ? My kids are at home. Those are my kids. This is a transaction. It's a business. The moment you have investors, it's a jointly owned company. It's no longer your own company. You owners का जो founders का एक mentality होती है, right? So, but I believe कि you have to understand कि भाई आपने company बनाई है and you do your best to take it to the next level. And then emotionally उससे इतना attached ना हो कि आपको छोड़ते हुए तकलीफ हो रही है, right? Because you need to move on at some point, and when you're a public company, आपके shareholders are everywhere, right? And 2011 में you left, and then what was the moment, like again thinking, trying to understand how you were thinking. अच्छा यार मैंने पैसे बना लिए, अब मैं even retire भी हो जाऊँ तो I'm okay. What do I want to do next? वो जो idea था, and again आपने AdTech के अंदर ही अगली कंपनी में काम किया. So idea वो आपने कैसे फिर how did you figure that out? So यार उस ज़माने में iPhone इंट्रोड्यूस हुआ था 2007 में. It was oh my god, ज़बरदस्त चीज़ है. And I was looking at कि भी टेक्नोलॉजी जा कर रही है. And the point was Czech was always in the high school college market. But जो छोटे छोटे बच्चे जो हैवी बैकपैक लेके जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी किताबों के साथ, वी लाइक यार इसको collapse करना चाहिए into a tablet. उस वक्त iPad भी नहीं बना था. तो we had started building an iPad. The company was called Know, KNO, for knowledge. And so we were looking to build a tablet-based education product, सिर्फ education के लिए, जिसमें आपकी बुक भी उसमें ही है, उसमें आप नोट्स भी लिख रहे हैं, सब कुछ जो आपको चाहिए वो सब टैबलेट में, कि आप टैबलेट के साथ कहीं चले जाएं and it's perfect. It had 2 screens, आप पेज फ्लिप करके उसको पढ़ते रहें and things like that. So we thought that was the evolution, कि let's stay ahead with technology. तो एक चीज़ जो मेरा होता है ना कि ओके सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट डिस्ट्रप्शन कमिंग जो कि मेरे आइडिया को डिस्टर्ब करेगी, उसको उसमें घुसते हैं जाके, ठीक है ना. सो देन वी दैट्स व्हाई वी गॉट इनटू द टैबलेट एंड वहाँ पे लुक वी बिल्ड समथिंग ग्रेट. मार्क एंडरसन वाज ऑन आवर बोर्ड, वी हैड एवरीथिंग, बट देन आईपैड गॉट इंट्रोड्यूस्ड. एंड जब स्टीव जॉब्स कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करता था तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं. अब एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया, या तो वो फेल होगा या सक्सेस होगा. अगर वो सक्सेस हो गया तो फिर ओके सर आप वैसे चले गए. अगर वो फेल हो गया, यार एप्पल नहीं कर सका तो आप कैसे करोगे? इट्स अ डबल एज सॉर्ड लिटरली. एंड सो बट देन व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि a week before shipping thousands of devices, we decided not to ship them and became a software company. But that whole company was then acquired by Intel. तो उसका exit हो गया, but it was not the vision we had set out to do. But that's just the reality of of life. Also, talk to me thoda sa like your thinking process. So $1 billion exit हो गया, 2-3 companies कर ली, हर जगह पे काम हो गया, but still ज़रा you're thinking about ideas. आपने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में आके रिजॉर्ट खोल लिया, which is nothing to do with that tech. पाकिस्तान में भी और like काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. Then education के अंदर भी काफ़ी. So how do you think about ideas? How do you think about what's coming next? And especially at this time and age, जब AI और डिजिटल के ऊपर चीज़ें इतनी फास्ट पेस हो रही हैं, बिकॉज
मतलब नॉर्मली वो कहते हैं यार बच्चे आपसे ज़्यादा तेज़ हैं, लोगों के पास आइडियाज़, अब तो आई थिंक वो हर किसी को, मैं भी यही कहता हूँ कि लाइक आइडियाज़ इज़ लाइक नथिंग, अब तो ChatGPT के पास आपसे बहुत ज़्यादा आइडियाज़, जस्ट लाइक एग्जीक्यूशन, yeah. बट हाउ टू थिंक, लाइक अ थिंकिंग प्रोसेस को अगर आप थोड़ा सा अपना बताएं. The thinking process, look, fundamentally आपने स्टार्टअप नहीं खोलनी बिकॉज यू वांट टू ओपन अ कंपनी. दैट्स लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट. मैं कंपनी खोलता हूँ फिर मैं कुछ करता हूँ, मैं क्या करना है. इट्स कम्प्लीटली द रॉन्ग वे. ठीक है, कंपनी इज़ जस्ट अ स्टेप इन द प्रोसेस. व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? और आपको कोई चीज़ बग करिए जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई आता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये आइडिया कर लूँ या मैं जॉब कर लूँ, मैं कहता हूँ जॉब करो. ओनली बिकॉज अंटिल वो आइडिया आपको इतना बग कर रहा है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपने उसमें घुसना नहीं है. कि entrepreneurship is a long hard journey and your passion for the problem gets you through the dark days. But if I talk about the other side, is it important to have passion? Yeah, it can also be like, yeah, I feel like this is the need of the market, or this is going to be the next need of the market, but I'm not really passionate about, still I'll do it. In दोनों में से like which one do you? Yeah, they can at the end of the day. If you're a shrewd businessman, तो probably like अच्छा मार्केट है, मैं ये करूँगा, मैं ये धंधे में जाऊँगा बिकॉज पैसा इसमें होगा, बट आई डोंट केयर अबाउट पैशन एंड एवरीथिंग. Look, so at the end of the day आपने टीम्स को मोटिवेट करना है, आपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है. अगर इन्वेस्टर देखा यार बिल्कुल ही ठंडा आदमी है ये, या दिस लेडी इज़ जस्ट नॉट इंटरेस्टेड कि बात करके आई एम फॉलिंग अस्लीप, you'll have a tougher time raising money because the assumption is कि ये जो आइडिया मेरे सामने एंटरप्रेन्योर लेके बैठा है probably is not going to work. And some other variation is going to work, इसी की वेरिएशन. एंड इज़ दिस पर्सन द काइंड ऑफ पर्सन जो कि इसमें लगा रहेगा या लगी रहेगी, या फिर चलो ठीक है करके चले जाएंगे, मेरा पैसा इल दे बी लाइक वट एवर. दिस इज़ अ फंडामेंटल टेस्ट फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप कि आपका आर यू रियली इनटू व्हाट यू वांट टू डू. बिकॉज इट्स अ वेरी टफ रोड. या 99.7% स्टार्टअप्स क्यों फेल होती हैं, राइट? आई मीन imagine के the odds are stacked against you. The odds are stacked against you, right? So you really have to believe in what you want to do. Entrepreneurship or startups are not for everyone, right? तो आपने but if you become passionate about something, now it can be everyone. But doing it for the sake of doing it, that is most likely going to be a very painful time for you. And because आपको सुबह उठ के यार अब ये हो गया, अब ये हो गया. बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में होता है कि आप एक ज़बरदस्त मीटिंग से निकलते हैं, बाहर कहते हैं बैड न्यूज़, आप बैड न्यूज़ लेके चलते हैं, गुड न्यूज़ आ रही होती है, तो आप फ्लिप फ्लॉप हो रहे होते हैं. आपने बड़ा कंट्रोल करना होता है कि ना तो आपने कुछ किसी चीज़ को ज़्यादा सेलिब्रेट करना है, ना आपने ज़्यादा उदास होना है, आपने इवन कील रहना है, बिकॉज दैट इज़ अ लाइफ. बट उसके अंदर योर पैशन इज़ वॉट टेक्स यू थ्रू द रियली डार्क डेज. तो वो बड़ा लाजमी है. और बहुत सी जो क्वालिटीज़ आपने सारा जिक्र किया, एक तो ये है कि इनबिल्ड है, बचपन से आपके अंदर रेजिलियंस है, या ओवर टाइम आप ठीक है स्लोली भी अगर बिल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्ड कर सकते हैं. एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बोर्न, दे कैन बी मेड. ये बिल्कुल एब्सोल्युटली चीज़ है. एंड व्हाट आर सम ऑफ द टॉप, लेट्स से इफ आई आस्क यू कि यार ये 5 क्वालिटीज़ आर द टॉप मोस्ट इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, एंड हाउ कैन यू इवन लाइक, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ठीक है ये तो पता है, बट हाउ कैन यू बिल्ड दैट विद इन योर सेल्फ? एक तो सबसे पहले है ना माइंडसेट, सेल्फ बिलीफ. सेल्फ बिलीफ इज़ कि ऑलराइट कुछ हो भी जाए मैं रास्ता निकाल लूँगा, मैं फिगर आउट कर लूँगा. आई विल गिव इट माई बेस्ट शॉट. एंड मैं बिट नाइव, जैसे आप पहले कह रहे थे, राइट? यू मे नॉट नो एवरीथिंग बट यूल डू इट. बाय द वे, वन ऑफ द रीजंस पीपल विद अ लॉट एक्सपीरियंस डोंट डू इट बिकॉज देयर एक्सपीरियंस वेयर्स देम डाउन. यार 5 साल पहले उसने देखा था वो नहीं हुआ था, तो ये कभी नहीं होगा. द लाइट की जाने की भी जगह नहीं है दिमाग के अंदर, राइट? इवन द इफ समथिंग डिडंट हैपन 5 years ago doesn't mean it's not going to happen now. So mindset, self belief. Second I would say is willingness to get your hands dirty. जैसे जब चेक खुली थी, मैं खुद कैंपस पे जाके, आई वाज 35 बाय द वे, मैं खुद कैंपस पे जाकर स्टूडेंट्स से बात करता था या उनको बुलाता था कि यार हम ये करने जा रहे हैं, या फिर अपने को-फाउंडर को कहता था बुक स्टोर के बाहर जाके कहो वुड यू वांट टू रेंट योर बुक्स. ओह रियली, आई कैन रेंट माई बुक्स? You can? Wow, I never knew that. Like, all right, reaction बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है. So get in there yourself to figure this out, right? Attention to detail.
रियली इंपॉर्टेंट, आपने स्प्रेडशीट से लेके कि डब्बे की पैकेजिंग कैसे हो रही है, या पे कस्टमर की जब कॉल आ रही है तो उसको हम कैसे ग्रीट कर रहे हैं। शुरू में इन द 0 to 1 फेज़, जैसे मैं कह रहा था, आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, बिकॉज फाउंडर्स का उस पर फिंगरप्रिंट होना चाहिए। मैं आपको बहुत सही सुना सकता हूँ कि हमने कल्चर में क्या चीज़ किया था, ये जो ये चीज़ें काम करती हैं। 3 हो गए, राइट। इसके बाद आई थिंक आपकी ऑब्वियसली टीम, अभी ये पहली टीम तो आपकी अपनी थी ना, अब आप जा रहे हैं कि जी आपने टीम को लेके चलना है। यहाँ पे आपका पैशन भी आता है, यहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है। आपने सीखना है कि यार अगर कोई बात ख़राब भी होगी तो मैं जब कंपनी में वॉक कर रहा हूँ, मैं सर नीचे करके नहीं जा रहा, मैं जो पता है कि दरवाजे से निकल के पीपल कैन नॉट सी कि कोई गंद हो गया। आप छुपा नहीं रहे, बट यू डोंट नो कि अभी वो पूरी तरीके से सॉल्व हुआ है कि नहीं, मैं मे बी आई हैंडल इट और नॉट, राइट। सो द एबिलिटी कि आप उसको टीम को लेके चलना, ट्रांसपेरेंसी विद द टीम। मेरी एक बड़ी क्लीन फिलॉसफी है, मैं टीम से कहता हूँ कि यार आई हायर एडल्ट्स, आई डोंट हायर बेबीज़, राइट। मैं आपको ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता रहा हूँ, कंपनी स्ट्रगलिंग, हम ये कर रहे हैं, एंड बस हम लोग को ये तुम्हें बता रहे हैं कि दिस मे गो अंडर, राइट, बट वी आर होपिंग कि हम लोग ये कर रहे हैं। और किसी के पास कोई आइडिया है तो हमें बताओ कि हम इसको और कैसे कर सकते हैं। हमारी किसी भी मेरी कंपनी से आज तक कोई लीक नहीं होती, बिकॉज मैं कहता हूँ यार देखो मैं खुला बता रहा हूँ सब कुछ। जब आप चीज़ें छुपाते हैं लोग फिर वंडर करते हैं यार ये पता नहीं हो रहा है कि नहीं, ये वहाँ पे कोई ना कोई बात लीक होती है आपकी। तो टीम के साथ ना आपने बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से चलना होता है। एंड द लास्ट इज यार इवन इफ़ यू हैव इन्वेस्टर्स, बी इंक्लूसिव। कि मैं इन्वेस्टर से कहता हूँ लोग, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द बोर्ड मीटिंग, समथिंग्स बगिंग यू, यू जस्ट कॉल मी। इफ यू थिंक आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग टू यू इनफ, वॉक इनटू द ऑफिस, आई विल गिव यू अ टूर, राइट। तो बीइंग ओपन डोर फिलॉसफी, आप आ जाएं, आप बात कर लें विद एम्प्लॉयज़, विद पार्टनर्स, विद हुएवर यू आर, राइट। एंड अगेन ऑफ द टॉप ये मेरे 5 आई हैं, बट सम अदर कंपनी में 1-2 आगे पीछे हो जाएंगी, बट आई वुड से कि द बिगेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सेल्फ बिलीफ के अंदर वो आता है व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर योर ओन कंपेटिटर। ठीक है ना। मेरी कंपटीशन की फ़िलासफ़ी कोर यही है कि जो मेरा भाग का कंपेटिटर है उसको मैंने एग्जॉस्ट करके थका देना है। फ्रॉम यू गोना रन सो फास्ट, वी आर नॉट गोना वरी अबाउट देम। हमने ये जो चीज़ करनी है कि अगला बंदा कहे यार ये क्या मुसीबत पीछे पड़ गया, ये तो रुकते ही नहीं है। जिस दिन चेक खुली थी उस दिन एक और कंपनी खुली थी बुक रेंटर के नाम से, बुक रेंटर। परफेक्ट नेम। 2 सेकंड में मालूम हो गया वो कौन है, राइट। उनका लोगो भी बड़ा अच्छा था, उनका बंदे को मार्केटिंग भी बेहतर आती थी। भी लाइक ये क्या हुआ, ठीक है ना। उन्होंने कहा देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। वी डिस्ट्रॉयड देम। एंड व्हाई डू यू थिंक कि वो मेन क्या वजह थी उसकी? फॉर एग्जाम्पल हमने मॉडल बिल्ड किया, देखें एवरीबॉडी अस्यूम्स 18 साल की लड़की या बच्चा आपको दिल चीट यू, तो 18 साल की हैं वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, राइट। हमने कहा यार अगर ये 18 साल का बच्चा जंग पे जा सकता है तो हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी किताब के साथ। तो हमने ना प्रोडक्ट बनाई, आपको 1% चीट करते हैं, 2% चीट कर लें, ठीक है ना, आप वो मॉडल आउट कर दें। हमने प्रोडक्ट बनाई फॉर द 97%। वी डिडंट मेक इट टू डिफिकल्ट फॉर यू टू इंटरेक्ट विद अस। उन्होंने बनाई 3% में, यार ये चोरी करेंगे तो हर एक चोरी करेगा। तो जो माइंडसेट था कि यार आप इसको बनाओ, डोंट वरी अबाउट द 3%, उसको 3 को फिर 2.9 करना है, फिर 2.8 करना है, फिर 2.7 करना है। आपने उसको अपने फाइनेंशियल मॉडल में डाल दिया जी ये मेरा लॉस होगा, तो बोर्ड को भी पता है, इन्वेस्टर्स को भी पता है, और वो बड़े शाबाश है आप उसको 2.7 कर दिया, वो तो उल्टी तारीफ़ करते हैं फिर, राइट। तो आपने उसको फिगर आउट कर लिया, बट आपने कंपनी बनाई कस्टमर को अंडरस्टैंड करके, कस्टमर की वॉइस की, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, वो चाहते क्या हैं, राइट। एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। एट सम पॉइंट ना हर कंपनी थोड़ा ऊपर जा रही थी, अचानक से प्लेटो हिट करती है कि भाई नंबर्स फ्लैट हो गए, ये क्या हुआ। तो हमने देखा कि लोग आ रहे हैं, उस वक्त आपके वेब पेज पे यू कैन सी द हीट जोन कि वो माउस की तरह घूम रहा है, नई टेक्नोलॉजी आई थी, बड़ा मज़ा आता था देख के, यार यूज़र का माउस यहाँ जा रहा है, ये हो रहा है। तो हमने देखा कि हमारे फाइनल बाय के बटन की इर्द गिर्द लाल है, बटन क्लिक नहीं हो रहा। एंड वी वर लाइक यार ऐसी क्या चीज़ है। तो हमने कहा यार स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी, हमने समझना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। हमने को 50 स्टूडेंट्स को कॉल किया जिन्होंने हमें पूरा कार्ड दिए हुए थे, पूरा भरने के बाद क्रेडिट कार्ड डालने के बाद बटन नहीं दबाया, मीनिंग कि 2-3 स्टेप में हमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो अमेरिका में कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्लास ड्रॉप कर सकते हैं, कि सेमेस्टर के पहले 2 हफ्ते में कहते हैं यार ये मज़े की नहीं है, टीचर पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं है, मैंने छोड़ दी,
यू नो केमिस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स का था कि आप मुझे किताब भेज रहे हो, अगर मैंने किताब क्लास ड्रॉप कर दी तो मुझे पूरे क्वार्टर का like a genuine problem. रेंट पे करना Yeah. पड़ेगा। नाउ 1% ड्रॉप, बट एवरीबडी थिंक्स अबाउट इट। जब हमें वो बात समझ आई तो हमने उसके बटन के नीचे उसी रात को लाल में लिख दिया, ड्रॉपिंग योर क्लास, नो प्रॉब्लम्स, ऑल रिटर्न्स आर फ्री। 1000% ओवरनाइट अप इन बिजनेस। ये कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई, ये कोई आपका मार्केटिंग में कोई जीनियस चीज़ आपने नहीं की, आपने सुना कि मेरे कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, and I'm giving you these are what differentiated us from others, right? Again, a lot of it came down to trusting the student, but also a lot of it came down to भाई अंडरस्टैंडिंग कि हम कर सकते हैं। इसको करने से पहले ना तो मैंने कभी टेक्स्ट बुक इंडस्ट्री का मुझे पता भी नहीं था अदर देन रीडिंग टेक्स्ट बुक्स। मैंने कभी ई कॉमर्स पे काम नहीं किया था, मैंने कभी कंज्यूमर कंपनी नहीं बनाई थी। आई हैड नेवर एवर बिन इनसाइड अ वेयर हाउस, राइट? ऑल द थिंग्स विच आर क्रिटिकल फॉर दिस बिजनेस, जो आप कहेंगे यार आपके रेज्यूमे में नहीं है, आप ये क्या खोलने जा रहे हैं, राइट? बट द सेल्फ बिलीव वॉज, आई थिंक इंक्रीमेंटली मुझे एक ये स्टेप चाहिए, आज ये फिगर आउट करना है, करते करते आप उसको फिगर आउट कर लेते हो। हमारा उसका क्या बेनिफिट हुआ कि वी मेड द मोस्ट ऑप्टिमाइज सिस्टम फॉर वेयर हाउसेज इन टेक्स्ट बुक इंडस्ट्री, प्राइसिंग के अंदर, हर चीज़ के अंदर। बिकॉज हमारे पास वो नहीं था जी वो वेयर हाउस में ये तो काम नहीं करेगा तो हम उसको ऐसे कर लेते। हमने कहा हमें पिक पैक शिप करना है, हमें इतना सॉफ्टवेयर चाहिए, हम खुद बनाएंगे, सब कुछ खुद करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया। अटेंशन टू डिटेल, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर को, मुझे पता था कस्टमर्स को बुक अगले दिन चाहिए या 2 दिन मैक्सिमम चाहिए, वेयर हाउस कहाँ रखना है। एवरीथिंग वॉज अबाउट अमेजिंग कस्टमर सर्विस। हमारे कॉम्पिटिशन ने क्या किया कि उन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया वेयर हाउस। अब थर्ड पार्टी का काम था जब किताबें आएंगी तो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में डाल देंगे। हमारा काम था 1 घंटे में किताब शेल्फ पे क्यों नहीं पहुंची कि उसने दोबारा बाहर जाना है, राइट? बिकॉज वो आती है, रेंट होकर उसने वापस जाना है। हमने टेक्नोलॉजी इनोवेट करनी शुरू कर दी कि भाई जब किताब हमें यूपीएस से मालूम है कि ये किताब वापस आ रही है तो उसको शेल्फ पे भी नहीं भेजना, उसको नए डब्बे में डाल के आप वापस बाहर भेज दें चेक करने के बाद। दीज वर ऑल द लिटिल डिटेल्स। मैंने वेयर हाउस में खुद खड़े होकर, मेरे को फाउंडर ने खड़े होकर किताबें लगाई हैं शेल्फ पे देखने के लिए कि भाई इसका प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। हमारे उस वक्त नेटफ्लिक्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते थे, उन्होंने हमारे साथ एल्गोरिथम लिखा इसका कि भाई हम किताबें ऐसे रैक करते हैं और कोई नहीं कर रहे, बड़े बेवकूफ़ हैं ये सारे। बायोलॉजी की किताब एक साथ रखते हैं, हम लोग साइज़ के हिसाब से किताबें रखते हैं, हम लोग ज़्यादा फिट कर देंगे शेल्फ में। सो ऑल दीज लिटिल डिटेल्स स्टूडेंट को जब नेक्स्ट डे किताबें पहुंचनी शुरू हो गई, हमने क्या किया, हमने यूपीएस के बिल्कुल पास में जाके अपना वेयर हाउस रख दिया। जब उनके ट्रक घूमते हुए आते थे पूरे शहर से तो आखिर में हमारा उठा के शिप होता था। मीनिंग के अगर कट ऑफ डेट यूपीएस की 4 है तो मुझे 11 बजे कट ऑफ नहीं करना, मेरा 3:45 बजे तक वो ट्रक आ जाएगा। तो आई कुड टेक रियली लेट ऑर्डर्स सो आई कैन शिप देम आउट, राइट? तो दीज आर द स्मॉल लिटिल डिटेल्स जो कि आप करते हैं। हमने ब्रांड में ऑरेंज बॉक्स रखा उस वक्त। फॉर नेटफ्लिक्स द DVD वॉज रेड, उनका लिफाफा था, जैपर्स का ब्लू था। हमने कहा हमें भी रंग चाहिए, हमने ऑरेंज डाल दिया। इट बिकेम आइकॉनिक बिकॉज कैंपस पे हो गया वो, हमारे पास मैसेज वापस आना शुरू हो गया, यार दे आर मोर ऑरेंज बॉक्सेस ऑन कैंपस देन अमेजॉन बॉक्सेस। हमने उसके अंदर डब्बे में ना एक्स्ट्रा डिलाइट के लिए शैम्पू के सैम्पल्स ये डालने शुरू कर दिए। तो लोगों ने ऑन ट्विटर अनबॉक्सिंग शुरू कर दी। मैं देखता हूँ मेरे आज बॉक्स में क्या है, ओह माय गॉड आई गॉट दिस, ओह आई गॉट दिस। दे वर एक्साइटेड विद द रेजर शैम्पू, इट वाज डिलाइट। So those were the little finer details that we did as a company versus कि जी किताब रेंट होगी बस आपको। the book became non-essential in terms of the package, the brand। हम लोगों ने क्या किया, we began to plant a tree for every book you rent because हमने कहा okay what's a feel good angle for the product, right? किताबें बनती हैं पब से, which comes from trees। Everybody was feeling guilty कि दरख्त कट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, राइट? हमने कहा ओके वील प्लांट अ ट्री फॉर एवरी बुक यू रेंट। हमारे पास मैसेज आते थे कैन आई नेम माई ट्री जॉनी। इट बिकेम अ थिंग एंड व्हाट्स शॉकिंग इज वी बिकेम द number 1 tree planter in the US। Wow. And we never set out Number 1 is a company. Okay. number 1 number of trees planted in the US by anyone, and we Wow. didn't even set out to do it because one of my core philosophy यहाँ पे as time went by that I want to do companies which can do well and do good,
I really believe कि companies should be profitable so they can sustain themselves, they can continue to deliver value. At the same time, be profitable, don't do profiteering. At some point too much profit is आप पे फिर what's the limit? फिर तो हम खोज में कह सकते हैं जी ओके जो पुराना मैटर्स नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, आप हंसेंगे तो आपसे पैसे लेंगे, राइट. वी ओवर स्टाफ एट खोज कि अगर कोई बीमार हो गया तो हमारे पास ऑलरेडी बंदा है, रिप्लेसमेंट है, कि हमारी कभी सर्विस में कम नहीं होना चाहिए, राइट. सो द फिलॉसफी दैट देयर इज कस्टमर डिलाइट, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू विन ओवर अदर पीपल. लॉट्स ऑफ पीपल डू इट, लॉट्स ऑफ पीपल ट्राई. पब्लिशर्स ने कोशिश की. At one point, Chegg was more valuable than all the publishers combined. Pearson, McGraw-Hill, सारे जो बड़े नेम आप देखते हैं, इन सबको मिला के Chegg was more valuable than that. And we were just, हम लोग, you know, at some point, 10 people were doing almost 30 million in revenue because we had automated so many things. And do you think कि अगर आप 2011 में ना जाते तो कंपनी शायद अभी उससे भी और बड़ी होती, या उसका do you think कि कंपनी का एक मतलब वो थ्रेशहोल्ड आ गया था? नहीं यार, आई मीन उसका विद इन द इट यू कैन नेवर यू नो क्वेश्चन योर सेल्फ, राइट. सो वन ऑफ द थिंग्स इज दैट आई पर्सनली बिलीव दैट आई कैरी नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर. आपने एक फैसला किया है एट दैट पॉइंट, एट दैट टाइम यू फेल्ट इट वाज द राइट वन. अगर वो गलत भी था तो लर्न फ्रॉम इट एंड यू मूव ऑन. यू डोंट कैरी इट बिकॉज आप उसको लेके क्यों घूम रहे हैं. वाई डू यू वांट द वेट ऑन योर सोल, राइट. सो I don't believe उसके बाद जो मैंने कुछ किया है फिर I would have been busy with just one thing, and I feel कि my life has been so much richer by doing all these different things that I've really enjoyed it. तो मेरा ऐसा कोई regret नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जी मैं उसको मैं क्यों छोड़ा, anything like that. Would the company have done better? I don't know. It's entirely possible. Founders can do things which others can't, but there are many times founders are the reason companies fail. बिकॉज वो इतने कहते हैं मैं फाउंडर हूँ, मुझे पता है, कि वो बिल्कुल ही औरों की बात सुनना छोड़ देते हैं. देयर इज अ सेइंग दैट यू गेट सो क्लोज टू द ट्रीज दैट यू कैन नो लॉन्गर सी द फॉरेस्ट. तो उसकी भी डाउन साइड होती है, राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स. आई मीन देयर आर मैनी कंपनीज जिसमें फाउंडर्स लीव एंड दे डू वेल. देयर मैनी कंपनीज फाउंडर्स स्टे एंड डू वेल. अमेजॉन को देखना है, ऑब्वियसली मैनी कंपनीज, राइट. If you look at Google, for the longest time, founders stay, but you know the CEO was running the company. Then the founders left. Now they came back. Microsoft के अंदर Bill Gates left, and Satya turned the company around. So these things happen, but at the end of the day, I'm loving what I'm doing. So that's what matters. And let's say if you have to start something today, and I ask you, okay, आपने पाकिस्तान में कुछ करना है. तो लाइक व्हाट वुड बी योर थिंकिंग प्रोसेस? बिकॉज एक चीज़ अगेन गिविंग अ कॉन्टेक्स्ट के हम लोग पाकिस्तान में जब स्टार्टअप इकोसिस्टम देखते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा शशकों में जाते हैं. जैसे सिलिकॉन वैली में ये नई चीज़ आ गई है तो लेट्स जस्ट लाइक यू नो डू इट है. AI हर बंदा बात कर रहा है, तो हर कंपनी वो कर रही है नहीं कर रही, AI अपने आगे पीछे या डोमेन्स में उसने डालना शुरू कर दिया या अपने लाइक मैनिफेस्टो में, बेशक नहीं भी उसकी ज़रूरत. तो हाउ वुड लाइक लेट्स से इफ आई आस्क यू कि हियर इज़ अ यू नो $500,000 or whatever, like what do you think, where is the scope in the market? Pakistan I think has so many opportunities. क्या पत्थर उठाएं नीचे 4 opportunities. अच्छा, हर कोई ये कहता है, मुझे कभी ना समझ नहीं आया. Example दे. If you can just go down the list of things you import, right? So I've just opened a company in medtech. आप कह रहे हैं कि नई कंपनी खोलूं. दुनिया में 300,000 मेडिकल डिवाइसेस बनती हैं, फ्रॉम स्टेंट्स टू पेस मेकर्स टू ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स. जब जंग होती है तो यहाँ पे आने शुरू हो जाती हैं, लोग मरने शुरू हो जाते हैं. वी डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग. या फिर हम उसको मे बी बाहर से मंगवा के थोड़ी पैकेजिंग करके जी कहते हैं हमने मैन्युफैक्चर किया, बट वो दे आर जस्ट स्टिकिंग इट इन फ्रॉम थिंग, राइट. सो आई एम इन द मिडल ऑफ अपनी कंपनी जो पाकिस्तान में कैथेटर्स और स्टेंट्स बनाएगी, और इंशाल्लाह 2 महीने में हमारी उसकी फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट मेड करेगी. That is a huge business. और ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है. पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, right? That's a massive business. उसके अंदर तो dozens of companies can open. Dozens of companies, not just in catheter. 50 किस्म के तो catheters हैं. बट अगर आप कोई देखें फ्रॉम पम्प्स टू एवरीथिंग, इतनी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप सिर्फ पाकिस्तान में ही बेच सकते हैं. आप सिंपलेस्ट थिंग देखें, इफ़ यू से ओ आई गो फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्या उसका बेनिफिट है? स्टार्टअप्स का एक काम होता है जी प्रोडक्ट मार्केट फिट करना है कि मेरे पास कस्टमर्स हैं कि नहीं, ये बिकती है कि नहीं, कितने की बिकेगी, क्या हो रहा है, राइट.
एंड मोस्ट पीपल, मोस्ट स्टार्टअप्स फेल बिकॉज दे कैन नॉट गेट प्रोडक्ट मार्केट फिट. अगर आप इस लिस्ट को ही देखें, इसका मतलब है कि इम्पोर्ट हो रहा है, राइट, कोई ख़रीद रहा है, प्राइसिंग भी आपको अंदाज़ा हुई है क्या प्राइसिंग है, कि अगर आपने खुद मैन्युफैक्चर कर लिया तो मे बी यू कैन अंडर कट द प्राइस एंड बिकम एन अनफेयर एडवांटेज पाकिस्तान के अंदर. उसकी इतनी बड़ी लिस्ट है, हर चीज़ इम्पोर्ट हो रही है. इफ़ यू जस्ट स्टार्ट टू गो डाउन दैट लिस्ट और फिर आप उसको ऑप्टिमाइज करके यू कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग इट. वन थिंग आई फाइंड इज अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज वरी अबाउट कि जी मैं यहाँ से बना के मैंने एक्सपोर्ट करना है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर. दे कैन मेक फैंटास्टिक बिजनेसेस जस्ट इन पाकिस्तान. उनको फंडामेंटली साउंड कर सकते हैं क्योंकि आपका कॉस्ट इतना लो है प्रोडक्ट बनाने का, राइट. अगर आप कोई भी प्रॉब्लम ले लें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ नाउ वन ऑफ द फास्टेस्ट थिंग्स यू कैन डू. अगर पहले आपको 20 लोग चाहिए था, आपको 2 लोग चाहिए टू बिल्ड एनीथिंग एंड टेस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड एंड ट्राइड, राइट. बट अगर आप किसी करंट प्रोडक्ट के ऊपर AI का स्टिकर लगा के कहोगे जी ये देखो जी AI है, तो वो आपको नहीं, अगर आप इन्वेस्टर को कह दोगे बट आपका कस्टमर समझ जाएगा ये नहीं है, राइट. आपने ना सब कुछ भूल के जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो, कोई आपको चीज़ पसंद है, स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई भी चीज़, उसमें कोई यार इसमें मैं क्या चीज़ सॉल्व कर सकता हूँ, व्हाट बग्स मी, वहाँ से आप शुरू करें और उसका कोना पकड़ें. इफ़ यू नॉट अ टेक्निकल पर्सन, यू कैन गेट अ टेक्निकल पर्सन विद यू. बट 2 लोग बैठ के आजकल एक इतना क्विकली फॉर जस्ट अ फ्यू $100 प्रोटोटाइप तक पहुंच सकते हैं टू टेस्ट इट आउट कि भाई ये डजंट मेक सेंस और नॉट. जो मैं नहीं कहता, हमने टेस्ट किया था जी, बुक स्टोर के बाहर खड़े होकर जी किताबें रेंट करनी है, उसने कहा हाँ करनी है, चलो मैं लेट मी बाय द बुक्स फ्रॉम यू, कैन यू गिव मी योर ईमेल एड्रेस, आई सेंड यू एन ईमेल, यू श्योर यू लुक एट द ईमेल. चलो हम या एंड दे ऑल लुक्ड एट ईमेल. बाय द वे मैं सोचा था कि ये किताबें गई, बट दे ऑल रिस्पॉन्डेड. बट वही हम भी यही कर रहे थे. आप राइट नाउ हमें तो बुक स्टोर के बाहर खड़े होकर करना पड़ा था ना विद इंडिविजुअल्स. नाउ यू कैन डू विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. कि आपने वेबसाइट खोलना, उसमें कोई चीज़ टेस्ट करना, थोड़ी सी ऐप बनाना, फॉर couple of $1,000 आप इजीली कर सकते हैं. डू यू ऑल्सो थिंक कि पाकिस्तान में जितने स्टार्टअप्स के साथ आपकी बात हुई, हम लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो शशकों में भी चले जाते हैं कि यार हमें बड़ी कोई कूल सी चीज़ बनानी है. बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक लिस्टिंग टू या आई वाज रीडिंग अ बुक, उसमें था कि जो बड़े बिजनेसेस हैं वर्ल्ड वाइड, अगर आप देखें अभी, ठीक है टेक को अगर हम साइड पे रखें, वो सारे बोरिंग बिजनेसेस हैं. लाइक आपने भी अगर हम देखें तो मतलब किताबें बेचना, अगर आप उस टाइम किसी को बताएं तो प्रॉब्ली लोग कहेंगे अच्छा व्हाट इज़ दिस, लाइक यू नो डू समथिंग लाइक कूल और व्हाटएवर. डू यू थिंक ये भी एक थोड़ा सा मसला है लोगों में कि वी आर लाइक ट्राइंग टू बी वेरी फैंसी, बट यू नो वो धंधे के जहन से हम शायद नहीं करते. यू नो वन ऑफ द रिचेस्ट पाकिस्तानीज इन द US UPS के लिए उनके डिब्बे बनाते हैं. वन ऑफ द रिचेस्ट. वाओ. आई मीन वो $1 million की वॉचेस पहन के घूमता है. दैट्स हाउ यू नो वी टॉक अबाउट बोरिंग बिजनेसेस. उससे ज़्यादा बोरिंग हो नहीं सकता. ब्राउन रंग की किस साइज़ का डब्बा चाहिए, किस साइज़ का लिफाफा चाहिए, राइट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि येस देयर इज़ सम ऑफ दैट, बट आपको वो भी चाहिए होता है बिकॉज इनोवेशन भी वहीं से आती है कि 99 में से एक निकल जाती है. लोग कहते हैं ओ माई गॉड इट्स सो ऑसम, राइट. वो 99 में फेल भी होना होता है. इट्स अ गेम ऑफ परसेंटेजेस. सो इट्स मोर लाइकली दैट योर बिजनेस विल बी सक्सेसफुल अगर आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को लेकर उसको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ रहे हो, राइट. वन ऑफ द कंपनीज आई हैव इन्वेस्टेड इन, इट्स बॉस्टन हेल्थ AI, पाकिस्तानी की कंपनी है. उन्होंने एक AI मॉडल बनाया है फॉर पेशेंट इनटेक. पेशेंट जब आते हैं तो उनका डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता, नर्स के पास टाइम नहीं होता उनसे फुल बात करने का. जल्दी जल्दी में ये हो गया बैठ जाएं, वेटिंग, एंड फिर डॉक्टर ने 2 मिनट देखा चले जाएं. उन्होंने AI को करंट मॉडल में ऐसे यूज़ किया कि पेशेंट इनटेक, अच्छा आपको क्या हो गया था, आपका पेट ख़राब हो गया है, आपने क्या खाया, AI पूरा क्वेश्चन करके नर्स को उन्होंने टैबलेट वापस पकड़ा दी, ठीक है. अब वो क्या करते हैं, जब डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंचता है तो डॉक्टर की स्क्रीन पे है कि जी ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, मोस्ट लाइकली ये 3-4 कॉजेज़ हैं, और डॉक्टर उसको अच्छा ये करके कर देता है. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज जब पेशेंट बाहर आए और उन्होंने कहा जी वो जाने से पहले मुझे वो उससे बात करा दें टैबलेट से. उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये वो मुझसे ज़रा मुझे बता दी कि मैं दवाई दूध के साथ खा सकती हूँ कि नहीं, या मैं ग्रीन टी के साथ ले सकती हूँ कि नहीं. मेरे बहुत सारे सवाल हैं, वो डॉक्टर साहब आपको तो टाइम नहीं है, मैं उससे बात कर लेती हूँ, राइट. व्हाट्स शॉकिंग इज़ दैट यू नो ह्यूमन बीइंग्स आर बिजी. जब बिजी होते हैं तो एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाते हैं,
थोड़े से साइड पे बैठ जाएं, क्यों, ये भी कोई क्वेश्चन है, आपको पता नहीं है। वो पेशेंटली उसको उन्होंने 50 का पूछा, हम यहाँ पे खान एकेडमी पाकिस्तान कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद के स्कूल्स में ट्राई कर रहे हैं, सिंध के टीचर्स के साथ कर रहे हैं। बच्चे हमें कहते हैं जी हमसे नाराज़ नहीं होती, बिकॉज टीचर हैज़ 40 स्टूडेंट्स, हाउ कैन दे हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद एवरीवन, इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। बट सो आप AI को इन चीज़ों में लेके आ सकते हैं एज अ फ्रेश स्टार्ट। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आप कर सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर में। बाय द वे पाकिस्तान का ना वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई फाइंड इज पाकिस्तान नीड्स अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर itself. There is an amazing work happening in the startup world पाकिस्तान में। मैं कुछ 10 कंपनी से मिला हूँ अभी तक in the past few days, and इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, but no one knows about them. Success breed success. तो जब तक इनका लोगों को पता नहीं चलेगा कि भी लाहौर में बैठ के वन ऑफ द बिगेस्ट शिपर्स, राइट, अमेजोन का 3rd लार्जेस्ट सेलर इस पाकिस्तानी जो कि 10,000 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लेके बैठ के सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। चाइना के बजाय पाकिस्तान ने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। देयर अमेजिंग स्टोरीज पाकिस्तानियों की जो कि आर नॉट गोइंग टू अदर पाकिस्तानीज। देखें US में जब सेमीकंडक्टर शुरू हुआ तो जब वो बड़ी इंटेल आया, इंटेल ने ये कर दिया वो कर दिया, एवरीबॉडी न्यू कंपनी ज़बरदस्त कर रही है, देन पीपल वांटेड मोर इनटू स्टार्ट, मैं भी कर सकता हूँ, हौसला बढ़ता है, राइट। सो गेटिंग द वर्ड आउट अबाउट द गुड स्टफ हैपनिंग पाकिस्तान में, सबसे पहले तो हमने वो करना है, बिकॉज उसकी बेसिस पे आपके और लोग आएंगे कि मे बी आई कैन डू इट टू। देखें आई मेक इट अ पॉइंट टू से कि भी मेरी पहली जॉब जमदार की थी, राइट। द पॉइंट इज़ कि इट डजंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से, आप कहाँ से आए हैं, ये इट्स अबाउट यू। आप कौन है, आपका क्या एटीट्यूड है, डू यू हैव टू फाइट, एंड दैट्स व्हाट इट टेक्स। Lastly, how do you handle stress? स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई डोंट वरी अबाउट थिंग्स आई डोंट कंट्रोल। कि जी मार्केट में हो गया, जी जंग हो गई, अब मेरा क्या बनेगा, कि जंग होगी है, हाउ डू वी ऑप्टिमाइज, हाउ डू वी डू वी, आई मीन वी केप्ट ऑल आवर एम्प्लॉयज, वी डिडंट डू एनी ले ऑफ्स, हमने वी ट्राई टू फिगर इट आउट, राइट। बट बॉटम लाइन यही होती है कि आपका व्हाट कैन आई डू टू मेक थिंग्स बेटर व्हाइल आई एम इन दिस सिचुएशन, राइट। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इन कोच की एग्जांपल ले लें जी, जब संदूर हुआ था, बिजनेस वेंट टू ज़ीरो, तो हमने कहा ओके, आउट ऑफ 32 विलाज विल जस्ट लीव 6-7 ओपन, शट एवरीथिंग डाउन, ठीक है, जाके हमारा उनका कॉस्ट ना आ रहा हो, बिजली का कॉस्ट ना आ रहा हो, हाउ डू यू मिनिमाइज, हाउ डू यू मेक योर वे थ्रू इट, और हौसला आपको चाहिए होता है, राइट। बट स्ट्रेस अगर आप लेते हैं ऑफ थिंग्स यू डोंट कंट्रोल, पर आपको एंग्जाइटी होती है, उसका कोई आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर you have to just address it. Worry about the things you control and become the best at those things. And another thing is कि human mind cannot process a blob. वो जंग हो रही है, अब क्या होगा, इट्स अ ब्लॉब जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके आप कहते ओके ये मैंने 4 स्टेप्स लेने हैं, आप आपका सांस, लंबा सांस लें एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दस 4 प्रॉब्लम्स। उन 4 प्रॉब्लम के फिर आप और सब प्रॉब्लम्स निकालेंगे, आप उसको अप्रोच करें कि ह्यूमन माइंड वर्क्स वेल जब उसके पास ब्रांचेस होती हैं, स्टेप्स होते हैं, ये करना है वो करना है, उसको ये करना है, वहाँ से ये करना है, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट। आप बस बैठ के परेशान नहीं हो रहे अब क्या होगा, यू डूइंग समथिंग अबाउट इट, आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। Do you also think there's a lack of mentorship in Pakistan, like a very practical mentorship? अब आप NICs में यहाँ जाएँ या co-working space, वहाँ motivational speaker तो बहुत आते हैं, do something, do your on boss and like what not. But like I think what we have talked about today is like a mini MBA sort of a thingy, where you talk like a very practicalities about the business. Like you take one news case study and like उसको फिर वरना ये कि ठीक है मोटिवेशन होनी चाहिए, आप में जोश होना, मतलब ये तो सारों को पता है, इसीलिए ज़ाहिर है वो कहेंगे यार ये कोई नई बात तो नहीं है। बट आई थिंक द मेंटरशिप पार्ट इन अ सेंस के जो डाइसेक्ट करे, जैसे हमने कहा कोई प्रॉब्लम आती है उसको आप 3 हिस्सों में खोलें, एंड इफ़ यू हैव एक्चुअल न्यूज़ केस, डू यू थिंक ये एक बहुत बड़ी कमी है? येस एंड नो। येस कमी है क्योंकि यहाँ पे जो लोग ग्रेट काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो आप जाकर उनसे मिल भी नहीं सकते। सो वन ऑफ द थिंग दैट मेक्स पुट सिलिकॉन वैली आउट ऑफ रीच from Houston, from Austin, from Boston, from New York City, from London is, अगर
एंटरप्रेन्योर इज़ अ टफ रोड एज आई सेड अर्लियर, कि आपको किसी से बात करनी है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे आप 3 लोगों से बात कर सकते हैं, विल टेल यू कि नहीं नहीं मैंने ये किया था, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, राइट, गाइडेंस दे देंगे, ठीक है ना. सो connecting to this thought, so there is a need for that, but there's also lots of good Pakistanis doing things जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है. I mean on this trip I've spoken to 10 young entrepreneurs जिनको आप ये मैं इसका कैसे करूँ उसका कैसे करूँ ना, गिव देम टिप्स एंड आइडियाज़, वॉक देम थ्रू मैंने क्या किया था, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है. इस हमारा जो बिगेस्ट एसेट है डायस्पोरा, इट्स ऑल्सो आवर बिगेस्ट फेलियर. Why do you say that? Because our diaspora, they're wonderful at giving charity, giving donations, love it, ठीक है. But countries donation से नहीं बनती. Countries बनती हैं when you have employees building good companies, building good businesses. Chinese, Koreans, Indians, Vietnamese, Brazilians, they all the diaspora went back and opened companies, ठीक है. हमारा यहाँ पे what's really important is कि diaspora needs to come back, help open companies or come and spend time over here, जाके वो नॉलेज ट्रांसफ़र हो. वो नॉलेज ट्रांसफ़र आप जूम पे भी कर सकते हैं, बट जो कभी कभी जो सामने आके बैठ के बात करने की होती है वो इट्स अ रियली डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. सो आई फील कि पाकिस्तानी डायस्पोरा नीड्स टू स्टॉप पुटिंग पॉलिटिक्स ओवर कंट्री. दे नीड टू रियलाइज कंट्री ऑलवेज कम्स फर्स्ट. आपका किसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है, बट द पुअर मैन हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. अगर आप यू कम एंड ओपन कंपनी, यू क्रिएट जॉब्स, उस प्रोसेस में अगर आपने कुछ सीखा है तो आप वो थोड़ा सिखा भी देंगे. यू नो आई वाज मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ. वन ऑफ माई मोस्ट सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ इज़ ही यूज्ड टू बी द बेल बॉय. साइकिल पे आता था, ही यूज्ड टू वरी अबाउट लंच एंड टीज एंड एवरीथिंग. राइट नाउ he is running one of my resorts. उसको मैंने एक्सेल सिखाई, पावर पॉइंट उसका नीड थी सीखने की. एंड यू नो यू कैन डू ग्रेट, यू डोंट हैव टू गो ओपन योर कंपनीज टू डू ग्रेट, राइट. उसके नाउ इज़ ड्राइविंग अ कार, उसका घर भी बन गया एंड ही इज़ रियली सेट एंड ही वर्क्स हिज हार्ट आउट. एंड उसके पास वो ड्राइव थी, बट मैंने उसके साथ काम किया, मैंने देखा कि ये कर लो ये कर लो. उसको उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अब उस लेवल पे ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज मैं उनको देख रहा हूँ, राइट. बट द बिगेस्ट थिंग एज आई वाज सेइंग कि ये नॉलेज ट्रांसफ़र चाहिए. अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स आते भी हैं, एटलीस्ट दे नीड टू मेक श्योर कि वो 3 दिन के लिए नहीं आए, वो आए तो सिर्फ नहारियाँ खा के वापस नहीं चले गए. दे एक्चुअली टेक टाइम टू मीट विद पीपल, नॉट विद सेसरी. डोंट टेक 20 मीटिंग्स, टेक 4 मीटिंग्स, बट मेक दैम मीनिंगफुल. और उसके अंदर नॉलेज ट्रांसफ़र करें. एंड इफ़ पीपल कैन जस्ट बी अवेलेबल, राइट, टू टॉक टू पीपल. आप हर एक का जवाब नहीं दे सकते, आप हर एक का नहीं कर सकते, बट देखिए, अ गुड एंटरप्रेन्योर कैन फिगर आउट अ वे टू गेट टू यू विद अ रियल क्वेश्चन. कहते हैं यू नो, अगर कोई मेरे पास मैसेज आ जाए, जी आपसे बात करनी है, व्हाट्सएप का नंबर दे दें, मैं कहता हूँ नहीं, आप मुझे बताते हैं आपने क्या बात करनी है, मैं आपको बताऊँगा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं, या आपको मैं किससे बात कराऊँगा, राइट. सो इट कांट बी जी बातें करनी है, राइट. वो तो उसके लिए तो पॉडकास्ट सुन लिया आपने. फिगर आउट द रियल प्रॉब्लम और उस पर जाके उस पर फोकस करके आप बात करें. बट आई फील द डायस्पोरा कैन गिव बैक अ लॉट एंड दे रियली, यू नो, समवन बी अपसेट विद मी इन द कमेंट्स, आई एम श्योर, बट आई फील के हमारे लाइफ में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आई हैं. आई एम 56. I've seen many coups, I've seen many prime ministers, I've seen many generals, I've seen all that stuff, right? Bottom line आपकी यही है कि you have to, country is there, right? लास्टली आपकी कोई एडवाइस हो फॉर द यंग पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, और उसमें भी 2 कैटेगरी. वन, एक तो जो अर्ली बिजनेसेस में हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी हद तक स्टैब्लिश कर चुके हैं. नाउ दे वांट टू मूव इनटू न्यू मार्केट्स, लाइक एक लेवल से ऊपर जाना चाह रहे हैं. बिकॉज एक चीज़ आई थिंक जो मैं लोगों से मिलता हूँ बहुत आता है कि यार अच्छा हम लोग कर तो रहे हैं, अच्छा यूएस मार्केट में कैसे एंटर हों. अब वहाँ आपको ज़ाहिर है स्किल्स हैं कि आपने बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू रीच आउट टू पीपल, बिजनेस डेवलपमेंट. सो इन 2 कैटेगरीज के लिए आपके क्या एडवाइस हो? Look, for people जो कि एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, फ्रेंकली दोनों के लिए, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ फिगर आउट अ वे टू टॉक टू 8-10 कस्टमर्स ओवर देयर. उनसे बात करें, उनका प्रोडक्ट दिखाएं, देखें वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है. वहाँ से आपने शुरू करना है कि मेरी प्रोडक्ट वहाँ काम करी कि नहीं. आप लॉन्च ना करें विदाउट नोइंग कि उसने उस मार्केट के लिए वो सही है कि नहीं.
यू मस्ट टॉक टू पोटेंशियल कस्टमर्स, देखने के लिए वो क्या कहते हैं, उनको एक दो को कन्विंस कर लो, कैन आई गिव द प्रोडक्ट फॉर फ्री, कैन यू बी माई बेटा कस्टमर, राइट? टॉक टू कस्टमर्स, राइट? यहाँ पे जो अर्ली स्टेज में कंपनी बना रहे हैं, होपफुली द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इज फोकस कि आपका कस्टमर कौन है. इफ़ यू डोंट नो, अगर आप आंखें बंद करके देख सकते हैं मेरा कस्टमर कौन है, देन यू कैन बिल्ड फॉर देम, और फिर उनसे मिलें, उनके साथ बात करें. वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेस इन एंटरप्रेन्योर्स कैन बी कि वो घबराते हैं कि मेरे आइडिया को कहते हैं तो बड़ा बकवास है, राइट? डोंट टेक फीडबैक फ्रॉम फैमिली. फैमिली एंड फ्रेंड्स कभी आपको नाराज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना? टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल यू वांट टू सेल इट टू, जिन्होंने आपको पे करना है. वो फीडबैक मैटर्स. फैमिली एंड फ्रेंड्स लव यू टू मच. उन्होंने कभी ये नहीं करना है ये क्या कर रहे हो, और शायद उन्हें समझ भी ना आए, मतलब उनको समझ भी नहीं, बट दे वांट लुक फॉर ऑल. इट कुड बी दैट यू आर राइट एंड दे आर रॉन्ग, राइट? बट व्हेन योर कस्टमर्स टेल यू, दैट्स व्हेन यू नो यू आर ऑन टू समथिंग. हर चीज़ का एट द एंड ऑफ द डे, देखिए आपको पूरा सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं है, मॉकअप्स बना के कस्टमर को दे सकते हैं. ये सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया कि लगता है कि असली चल रहा है. lovable and like, you know, I now mean, you you can do yeah. so much. वो तो हम, you know, like the world has changed. You can do so much with so little. आपको बस चाहिए कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मैं क्यों बना रहा हूँ, और इसमें इवेंचुअली मैं इसको, you know, इसका मॉडल क्या है. Swan bhai, thank you so much for taking the time out. I wish हम लोग और डिटेल में जा सके, but probably in the next nashist. But it was very lovely talking to you, really. I Thank really you enjoyed for having it. me. I really, really appreciate it. No, And thank hopefully it was useful for the listeners. you. Thank you so much. Thank you you. for your time.